नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एसपी किशोर बाबू ने गांधीगंज क्षेत्र में स्थापित सीसी कैमरों का उद्घाटन किया। जिला भाजपा द्वारा प्रदर्शन कर रैली निकाली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा। अल्पसंख्यकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल होना चाहिए, बसवराज बोमई। 27 फरवरी से फिर से शुरू होगी मेकेदातु पदयात्रा, कांग्रेस नेता सिद्धरामैया। हेल्थ वेबिनार को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, हमारा प्रयास है कि गांव-गांव तक पहुंचे बेहतर हेल्थ फैसिलिटी। रूस के खिलाफ वोट नहीं करने पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, मनीष तिवारी बोले मित्र को बतानी चाहिए थी उसकी गलती। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हारगिरी कमान, बीजी सर्कल, विद्यानगर कॉलोनी, मैलूर क्रॉस, बीवीबी कॉलेज क्रॉस, बिग बाजार, एमएस पाटिल फंक्शन हॉल, गुम्पा रिंग रोड, चिट्टा क्रॉस, कुल 10 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इसका उद्घाटन आज गांधीगंज पुलिस स्टेशन में एसपी किशोर बाबू ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों के सहयोग से 10 स्थानों पर कुल 25 कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर एडिशनल एसपी महेश मगनावुर, डीएसपी केएम सतीश सहित गांधीगंज पुलिस स्टेशन के सीपीआई और पीएसआई, उसके अलावा क्षेत्र व्यापारी गण आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहयोग देने वालों और कैमरा स्थापित करने वालों सहित गांधीगंज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को एसपी किशोर बाबू ने सम्मान किया। वहीं इन सभी ने भी एसपी साहब का सम्मान किया है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 25 CC ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವರು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ DYSP ಎಡಿಷನಲ್ SP ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು 25 CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ನ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ। ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 155 CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ 90 CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದ 65 CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಒಟ್ಟಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪರಾಧಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ। ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। जिला भाजपा द्वारा आज शहर के गणेश मैदान से एक प्रतिभटना शुरू करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। भाजपा ने हाल ही में शिवमोगा में हर्ष की हत्या का खंडन करने के साथ साथ हिजाब मामले और विधानसभा में विपक्ष द्वारा सदन में धरने पर बैठने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष और ईश्वर सिंह ठाकुर आदि ने बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರದೇನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಖಂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಬಗೆಯ ನೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಥ ಅವರದ ಏನು ನಿಲುವಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಏನು ನೀತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಒಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತೋ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿಗೆ ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಹಕಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವತ್ತು ತುಂಡಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಿಲುವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಜಾಬಿನ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸದನವನ್ನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸದನದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ अब देखते हैं समाचार राज्य के। राज्य में चल रहे हिजाब पर कलबुर्गी में कांग्रेस के युवा नेता यूनुस खान ने हमारे चैनल के संवाददाता मशहूद आलम से बात की। यहीं पे कोर्ट का ये भी है कि जहाँ पे सीडीसी है वहीं पे जहाँ पे सीडीसी है वहीं पे ये लागू होता है, और कई जहाँ पे सीडीसी नहीं है वहीं पे भी पुलिस रहते या मीडिया वाले रहते उसमें इंटरफियर करके वहाँ पे भी रोका जा रहा है। तो इससे आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, जब भी पुलिस डिपार्टमेंट स्टूडेंट के बीच में जब जाके हिजाब के मामले पे जब ये करे तो स्टूडेंट को भी एक दिल में ये पैदा कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट का एक डर खौफ पैदा कर रहे हैं कि हिजाब के लिए वो कॉलेज के बाहर प्लीज़ मत जाइए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप कुछ भी ये करो, लेकिन स्टूडेंट और टीचर्स का बुर्खा निकालने करने ये पुलिस इतना ज़बरदस्ती सख्ती नहीं करना। और रहा मसला तुम्हारा सीडीसी, ये सीडीसी स्कूल्स और कॉलेज में एप्लीकेबल है। यहाँ पर ऐसा माहौल बना रहे जा रहे, दूसरे कॉलेजेस में भी उसको हिजाब के मामले में इशू बना के उसको उठा रहे, वो गलत है, ये नाकबूल है। हम इसके बारे में बातचीत चल रही है हमारे पास भी। इंशाल्लाह कोर्ट में फैसला है, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उसको हम कबूल करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि वो हक से हमारे हक में फैसला। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हिजाब का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है और ये कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, रोज़ की हियरिंग हो रही है। हमारे साथ आज कांग्रेस के युवा नेता और समाज सेवक यूनुस खान साहब KTS हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि इस सारे मामले पे इनका क्या नज़रिया रहेगा। सर, वो अब जो कि इसका मामला चल रहा है हिजाब का मामला, तो आप एक युवा नेता हैं और कई सारे समाज सेवक का काम कर रहे हैं। कोरोना में भी कई सारे ना धर्म को देखते हुए आपने कई सारे काम किए हैं। तो अभी ये हिजाब का मामला उठा है, तो आप किस तरह से आप इसको देखते हैं? पहले तो मैं KP न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बात आवाम तक पहुँचाने में मेरी मदद कर रहा है। इस चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से मेरा सलाम पेश करना चाहता हूँ और आदाब अर्ज़ है। हिजाब का मामला दिसंबर से शुरू हो गया कर्नाटक में, मंगलूर, उसके बाद कुंदापुर। ये हिजाब का जो इशू है, ये हिजाब का इशू बनाना नहीं चाहिए था पहले। ये हिजाब का इशू बनाने का एक बहुत ही बैकडोर से काम किया जा रहा है। इस पर हिजाब का इशू इसलिए उठाया जा रहा है कि जो प्रेजेंट सरकार है सेंट्रल में और कर्नाटक में,
ये दोनों सरकार की जो नाकामियां हैं उनको नज़र आ गई अपने आप को उनको। उसके बाद इनको समझ में आ रहा है कि अब आगे चुनाव में कैसा बेनिफिट लेना, कि एक कम्युनिटी और एक दूसरी कम्युनिटी को डिवाइड कैसा करना, कि पॉलिटिकल गेन हम कैसा हासिल करना। तो इसके पीछे साजिश है, ना कोई हिंदू भाई है या कोई अलग सिख भाई है, ना क्रिश्चियन भाई है। ये कोई एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, सब पीस चाहते हैं, वेल डेवलपमेंट चाहते हैं, अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, अच्छे बच्चों का एजुकेशन चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं हिंदुस्तान का और अपने गांव सिटी का, अपने गांव का। ये पॉलिटिकल इससे मेरी नज़र में ये पॉलिटिकल इशू बना के पॉलिटिकल ये कहीं पे आपको इसको लगता है कि राजनीति सिर्फ बड़े लोगों में और इसमें युवा तक नहीं पहुंची थी कि जाति, तो अब ये कॉलेज के स्टूडेंट तक जातिवाद फैल गया, तो इसको कैसा रोकना चाहिए? युवा में जो राजनीति का असर दिख रहा है, अभी ये पहला स्टेप है इनका, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यहाँ की। तो ये स्टूडेंट में ये राजनीति नहीं आना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट एक देश के एक यह है मजबूत पिलर, जो देश को चलाने वाले आगे युवा ही है। युवा को ये मामले में नहीं पढ़ना, युवा सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अच्छे डेवलपमेंट्स के लिए अच्छे पोस्ट पे आना चाहिए, पढ़ के, और सेकुलर जहन रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हमेशा रहेगा, और ता क़यामत तक हिंदुस्तान सेकुलर ही रहूँगा। और रहा मसला कॉलेजेस में हो या स्कूल में हो, जब भी अपने कॉलेजेस में जो भी इशू आता, स्टूडेंट ये नहीं देखना चाहिए कि ये समाज से, ये वो समाज से, ये लो समाज से, ये हाई समाज से। जब भी अपने कॉलेज स्कूल में जो भी प्रॉब्लम आ रहे, पूरे स्टूडेंट एक हो के अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा, उसके खिलाफ पूरे स्टूडेंट ठहरना चाहिए। कि ये नहीं देखना चाहिए कि ये वो फला कम्युनिटी से आ रहा, फला कम्युनिटी से। जब हम स्कूल में पढ़ते तो हमारा यही था, तो आज तक हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म बाकी है, आगे भी रहेगा ता क़यामत तक, हमारा ऐसा सोचना है। कुछ पॉलिटिकल इसको रंग देना चाहते हैं, वो नाकामयाब होंगे, हमारे को मालूम है, उम्मीद है। ये थे कांग्रेस के युवा नेता यूनुस खान केटीएस, जिनका ये कहना है कि ये ज़्यादा दिन तक ये चीज़ चलने वाली नहीं है। ये जो पूरा हिजाब का मामला है अभी कोर्ट में चल रहा है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा ये किस तरह मोड़ लेगा। कैमरा पर्सन वसीम के साथ मशहूद आलम, केपी न्यूज़। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं के बीच एक बैच की 2 सप्ताह की दैनिक सुनवाई के बाद कक्षाओं में हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हिजाब से जुड़ी याचिकाओं को फैसले के लिए सुरक्षित रखने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील एस बालन ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम लड़कियों को मीडिया और शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूल के बाहर हेडस्कार्फ हटाने के लिए मजबूर करके परेशान किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति JM खाजी की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा, जो कोई भी पीड़ित है वह उपयुक्त अधिकारियों को शिकायत कर सकता है। राज्य का बजट पेश करने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय पर स्थापित कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से गरीबी में डूबे लोगों के कल्याण पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा निर्मित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भवन का उद्घाटन करके अपने संबोधन में सीएम बोम्मई ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल होना चाहिए। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। बच्चों को प्रतिस्पर्धी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें उन्हें अवसरों का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ने में मदद करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस मेकेदातु परियोजना के कार्यान्वयन की मांग के लिए 27 फरवरी से मेकेदातु पदयात्रा फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने पहले राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण जनवरी में यात्रा स्थगित कर दी थी। सिद्धरामैया ने कहा, मेकेदातु परियोजना का समापन 3 मार्च को नेशनल कॉलेज के मैदान में जनसभा के साथ होगा। हम इस पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सभी के समर्थन का अनुरोध करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कन्नड़ फिल्म उद्योग से मेकेदातु मार्च को समर्थन देने की अपील की।
दोनों नेताओं ने यहां मीडिया से कहा, हम कन्नड़ा फिल्म उद्योग और कन्नड़ा समर्थन संगठनों से मार्च में शामिल होने और समर्थन देने का अनुरोध करते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि उसने राज्य में हिजाब विवाद के पीछे कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अदालत घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से उस विवाद की जांच करने की मांग की गई थी, जो उडुपी के तटीय जिला मुख्यालय शहर से शुरू हुआ और देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने उपाध्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष झा से कहा, हमने पहले ही सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है और हम आपके सबमिशन पर विचार करेंगे। पीठ के समक्ष अपना तर्क पेश करते हुए झा ने कहा कि क्लासरूम में हिजाब पहनने के लिए जोर देने वाला आंदोलन कट्टरपंथी संगठनों की करतूत थी, जिन्हें कुछ विदेशी राष्ट्रों द्वारा वित्त मदद की जाती है। राज्य सरकार ने 7 KAS अधिकारियों की संशोधित पोस्टिंग के आदेश जारी किए, जो फिलहाल तहसीलदार के रूप में कार्यरत है। संशोधित पोस्टिंग 1998 बैच के राजपत्रित परिवीक्षाधीनों के चयन विवाद से संबंधित है, जो 1 दशक से अधिक समय से चला आ रहा है। अनियमितताओं के आरोपों के कारण 2006 में प्रकाशित कर्नाटक लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के इस बैच के लिए मूल चयन सूची को अदालत में चुनौती दी गई थी। 2021 में उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर KPSC ने परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों के लिए पोस्टिंग की एक संशोधित सूची प्रकाशित की। कुछ उम्मीदवारों ने इसे कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी। सरकार के आदेशों में कहा गया है, क्योंकि कैंट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, सरकार अब 2021 में जारी संशोधित सूची को लागू कर रही है। आदेश में कहा गया है कि ये अधिकारी जो वर्तमान में KAS वरिष्ठ और कनिष्ठ ग्रेड के पदों पर है, उन्हें अब सहायक आयुक्त और अन्य कर्तव्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्हें उनके मौजूदा पद से मुक्त किया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक हेल्थ वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है, ताकि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी और मजबूत बनाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि बजट 2022 में हेल्थ सेक्टर के अंदर 3 कारकों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन विस्तार शामिल है। इसके अलावा रिसर्च को प्रोत्साहित करना और आधुनिक और भविष्य की तकनीकी को अपनाना। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत सरकार ने कोरोना काल में वन अर्थ वन हेल्थ स्क्रिप्ट की तर्ज पर हमारा फोकस वन इंडिया वन हेल्थ को लेकर समान व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए काम कर रहे हैं, जो केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं हो। हमारा प्रयास है कि गंभीर स्वास्थ्य सेवाएं जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर भी उपलब्ध हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 76 से अधिक सभाएं एवं कार्यक्रम कर चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश में अभी भी धुआंधार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। वे चारों राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर
आश्वस्त है और पंजाब में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास उठ चुका है, लेकिन भाजपा ने इस विश्वास को फिर से कायम किया है। यही कारण है कि लोग उसे अपना समर्थन दे रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक बर्ताव की कड़े शब्दों में निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने कहा कि भारत को यूक्रेन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मतदान में भाग लेना चाहिए था। तिवारी ने ट्वीट किया, ऐसा समय आता है जब राष्ट्रों को खड़े होने और बिल्कुल अलग खड़े नहीं होने की जरूरत होती है। काश भारत ने सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की उस जनता के साथ एकजुट प्रकट करते हुए मतदान किया होता जो अप्रत्याशित और अनुचित आक्रमण का सामना कर रही है। मित्र जब गलत हो तो उन्हें यह बताने की जरूरत है कि वो गलत है। दुनिया के ऊपर से आवरण हट गया है। भारत को पक्षों को चुनना होगा। सिविल लाइन पुलिस ने चक्कर की मिलक निवासी 2 बड़े खाईवाड़ों को किया गिरफ्तार। जनपद मुरादाबाद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिविल लाइन पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब थाना सिविल लाइन पुलिस ने एसएसपी बबलू कुमार के निर्देश पर दबिश के दौरान 2 बड़े सट्टे के खाईवाड़ों को चक्कर की मिलक से गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा सिविल लाइन द्वारा किया गया। मुरादाबाद रिपोर्ट आलम वारसी। बिहार सरकार में विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने आज पटना पोलो रोड अवस्थित अपने आवास पर अपने मंत्रालय और अपने कार्यकाल के 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। रिपोर्ट कार्ड को सेवा, समर्पण और सुशासन को समर्पित किया गया है। रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि सर्वप्रथम वे चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए विधानसभा भेजने का काम किया है। चकाई की जनता के आशा के अनुरूप उनके समग्र निरंतर गुणात्मक विकास हेतु सतत प्रयत्नशील है। उनके जीवन में अपेक्षित सुधार के लिए कटिबद्ध है। साथ राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व के निष्ठापूर्वक निर्वहन हेतु वचनबद्ध है। पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आज बजट सेशन का पहला दिन था। उसी के लिहाज से हमने आज साल भर में जो हम लोगों ने कार्य किए हैं या जो हमारी वार्षिक योजना है आगे काम करने की, उन सब के बारे में ही आप लोगों को जानकारी देनी थी। जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि जब तक हमारी जो सरकार है 2005 के पूर्व जब हमारी सरकार बनी थी, उसके पूर्व जो बिहार की स्थिति थी उसमें मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज, इनकी संख्या इतनी ही थी। लेकिन आज के दिन में आप किसी भी ज़िले में चले जाएंगे तो लगभग हमारे कॉलेज तैयार हैं और जहाँ नहीं भी तैयार है वहाँ भवन समझिए कि अगले वर्ष तक हम लोग को कंप्लीट हो जाने की स्थिति में है। और हमारी स्थिति ये है कि अब हम हर जगह पठन पाठन के कार्य में सुचारू रूप से पढ़ाई करवा रहे हैं। उसके अलावा हम लोग लगातार निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे इसमें और ज़्यादा। शामली में खनन ठेकेदारों ने पट्टे की आड़ में अवैध रेत खनन का काला कारोबार जोरों शोरों पर कर रहे हैं। खनन ठेकेदार खनन करने में इतना मगन हो चुके हैं कि रात दिन खनन करते हुए नियम कायदों को भी ताक पर रखकर जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। चंसिकों की चमक ने खनन ठेकेदारों को इतना अंधा बना दिया है कि एनजीटी के नियमों को ताक पर रखते हुए प्रतिबंधित मशीनों द्वारा यमुना नदी के सीने को छलनी किया जा रहा है। वहीं खनन माफियाओं द्वारा यमुना नदी की धारा को भी मोड़ दिया गया है। आखिरकार सोचने वाली बात यह है कि संबंधित अधिकारियों को सब कुछ पता होने के बावजूद भी अनजान क्यों बने हुए हैं। अधिकारियों की इस खामोशी को देखते हुए ही खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। वहीं रात दिन हो रहे खनन के चलते ग्रामीणों को बरसात के दिनों में बाढ़ का खतरा भी सताने लगा है। युद्ध के बीच रूस के खिलाफ पाबंदियों का सिलसिला लगातार जारी है और दुनिया भर में राष्ट्रपति पुतिन की युद्ध छोड़ने के लिए निंदा की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने राष्ट्रपति पुतिन और उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं यूरोपीय संघ ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। वहीं ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने रूस को हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई रोक दी है और कहा है कि रूस को हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का ये फैसला काफी ज्यादा सख्त है और रूस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। देखते हैं फिल्म जगत के समाचार।
ऋतिक रोशन ने पहली बार सबा आजाद के लिए लिखी पोस्ट। लोगों ने पूछा तो मामला कंफर्म है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। विराट कोहली के 100वें टेस्ट में दर्शकों को अनुमति नहीं, मगर पीसीए कर रहा है खास तैयारी। देखते हैं समाचार बाजार के। जल्द ही 14 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, तेल कंपनियों को हो रहा नुकसान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। एसपी किशोर बाबू ने गांधीगंज क्षेत्र में स्थापित सीसी कैमरों का उद्घाटन किया। जिला भाजपा द्वारा प्रदर्शन कर रैली निकाली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा। अल्पसंख्यकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल होना चाहिए, बसवराज बोमई। 27 फरवरी से फिर से शुरू होगी मेकेदातु पदयात्रा, कांग्रेस नेता सिद्धरामैया। हेल्थ वेबिनार को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, हमारा प्रयास है कि गांव-गांव तक पहुंचे बेहतर हेल्थ फैसिलिटी। रूस के खिलाफ वोट नहीं करने पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा। मनीष तिवारी बोले, मित्र को बतानी चाहिए थी उसकी गलती। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।